Okay, thank you. Okay, good. Suraj, put your attendance also. Okay. So Arya, Suraj, and Samir. These three people have joined. Okay. So what is our topic? Magnetism is completed. Our topic is electromagnetic waves and communication system. Okay. So in the previous two lectures, we have seen what is electromagnetic wave, how it propagates, what is the direction of magnetic field, what is the direction of electric field. Okay, so we have a fair idea about EM waves, and also we have seen some properties of EM waves. Okay, so sources of EM waves. After that, we have seen a few formulas. One formula for the speed of EM wave, that is this one. Okay, so this formula is very important to calculate the velocity of EM wave. Okay, so just remember this formula. After that, another formula is there. This formula is for amplitude. Okay, amplitude of electric as well as magnetic field. Now E0 bar and mod of E0 bar, here this is nothing but the amplitude of electric field. Okay, and the B0 is for magnetic field. So ये दो formulas बहुत important है. इन दो formulas को आप याद कर लीजिए. दो ही formulas मुझे लगते हैं बहुत important इस chapter में है, बाकी के तो इतने कुछ नहीं है. उसके बाद में intensity का भी ये formula है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस intensity के formula पे कोई भी क्वेश्चन आएगा. बट फिर भी आप लोगों को ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. ओके, so after that I think we have seen two examples from this 13.1 and 13.2, and I had asked you to solve the problem example 13.3, 13.4, 13.5, and 13.6. Okay, so these examples has to be solved by you. So I don't know whether you have solved these or not. If not, then you have to solve after today's lecture. Okay, so I'm not going to solve these examples because these 6 examples are based on the last 3 formulas that we have seen, and until and unless you try and practice these examples, this is not going to help you. Okay, so there's nothing like you cannot understand in these examples, so I'm not going to waste our time on these examples. Okay, so I'm just skipping those examples for you to do, and we'll start our next topic, that is electromagnetic spectrum. Okay, so now what is electromagnetic spectrum? The orderly distribution, sequential arrangement of EM waves according to their wavelengths or frequencies in the form of distinct groups having different properties is called EM spectrum. The properties of different types of EM waves are given in table. Okay, so now first of all, वी हैव सीन ईएम वेव्स. हमें पता है कि ईएम वेव्स बहुत ही यूजफुल वेव्स है, बराबर, कि मतलब कम्युनिकेशन हो या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो कि ईएम वेव की मदद से हम कर पाते हैं. ओके, सो इन ईएम वेव्स को अच्छे से समझना जरूरी है. तो हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी सीख लिया कि ईएम वेव में क्या होता है. एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है एंड उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एंड बोथ द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. मतलब जिस डायरेक्शन में वो वेव ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. सो इतना हमें ईएम वेव के बारे में पता है, बराबर. तो अभी जब वेव की बात आती है, व्हेन वी टॉक अबाउट वेव, so there are few more things. Okay, so let us suppose this wave is there. Okay, so what are the other things that comes to your mind when I talk about wave? Okay, so मैंने यहाँ पे एक वेव ड्रॉ की, तो आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज है जो आती है जब मैं एक वेव की बात करता हूँ? इसके कौन से पैरामीटर्स और रह सकते हैं? ओके, हैव यू एनी आइडिया? आप लोग कुछ मतलब आप लोग रिलेट कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ में? ओके, so if you have idea, then put the different things that comes to your mind when I say wave. Okay, and if you don't know anything, then just put here no in the chat box so that I'll know that you don't know about the wave, and will continue. Okay, without wasting time.
So have you any kind of idea about a wave? You have learned the waves, okay? So ये जो वेव है, ओके, आर्या को नहीं पता है, दैट्स फाइन। तो इस वेव के बारे में आपने सीखा है 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में। सो ठीक है, जब मैं एक वेव की बात करता हूं तो क्या आपने कभी फ्रीक्वेंसी सुना है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, हैव यू हर्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? यस। सो जब हम एक वेव की बात करते हैं, देन these are the things that come. Remember, now see, this is the axis, okay? So this is the axis and this is the wave. So this value, the peak value, okay, the highest value is called amplitude, okay? Amplitude of the wave, amplitude को मैंने आपको पहले ही बता दिया था। Now what is the wavelength? तो wavelength यानी कि जहां से वेव शुरू हो रही है, see, the wave is starting from here and the wave is ending here. Wave is ending here. So the length of the wave, see, this length is nothing but the wavelength. मतलब कि वेव की लेंथ यानी कि वेवलेंथ, okay? So this is wavelength. Now what is frequency? So this is one cycle, okay? This is one cycle of wave. One positive and one negative forms one complete cycle of a wave. So how many cycles, sorry for the interruption. Okay, so just give me a few seconds. I'm just ओके। सो आई होप या, सो मैंने आपको वेवलेंथ बताया, फ्रीक्वेंसी बताई। फ्रीक्वेंसी समझ में आई आपको कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड में इतने इस टाइप के वेव्स कितने पास हो रहे हैं? इफ फाइव साइकिल्स आर पासिंग इन अ 1 second, देन वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, ओके? सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये दो चीजें एक वेव के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमें what is called the deep portion, it is amplitude, no, it is amplitude. See, it is amplitude, but it is in negative, okay? It is, its value is negative. जो सबसे, see, this is positive half cycle and this is negative half cycle. The highest value or the lowest value, actually this is not the lowest, this is the highest in terms of negative values, okay? So इसे कहते हैं हम एम्पलीट्यूड, ओके? सो वेव के बारे में ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। नाउ अभी मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड, सॉरी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात क्यों कर रहा हूँ, ओके? सो जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखने जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेवफॉर्म्स, ओके? अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या सीखने वाले हैं? ईएम वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और उनका वेवलेंथ, इनको अगर हम, मतलब अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो उन वेवलेंथ में क्या डिफरेंस आएगा, समझ रहे हो? तो इस तरह से हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which is not at all visible in this book, okay? So for that I have to show another slide to you. Just give me a second, okay? So I'll just present you another tab. So the presentation has stopped. Now I'm presenting my entire screen. Okay, so this is the electromagnetic spectrum actual. Okay, just take the screenshot. The electromagnetic spectrum is not clearly visible in your book, I think. So just take the screenshot. It may be useful for the reference purpose. Okay, so यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। नाउ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1, 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁶, 10⁻⁸ and 10⁻⁻². So if you can see all these things, okay, so these are nothing but the wavelengths, okay? This is what, these are wavelengths. So ये wavelength से मतलब अभी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है रेडियो वेव्स का, सो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है
वो रह सकती है 10⁻², से लेके 10⁻8 मीटर्स तक। अब देखिए, 10⁻², से लेके -2 से लेके 10⁻8 तक वेवलेंथ रह सकती है। अभी 10⁻², अगर मैं कहूंगा, 10 अगर मैं 2 कहूंगा तो उसका मतलब होता है 100 मीटर्स। तो रेडियो वेव जो होती है उसकी वेव, एक वेव 100 मीटर्स की भी हो सकती है। ओके, सो ये बात आपको समझनी है। दिस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको आपको समझ में आया किस तरह से वेवलेंथ? डिड यू अंडरस्टैंड वेवलेंथ? आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ओके, वेवलेंथ समझ में आ गया। तो अभी ये रेडियो वेव्स है। उसके बाद में आईआर वेव्स, आईआर यानी कि इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स जो है उनकी जो वेवलेंथ है वो उनसे भी छोटी है। सी, 10⁻⁻², दैट मीन्स 0.01 मीटर्स। ओके, 0.01 मीटर्स उससे भी छोटी है आईआर वेव्स की। आईआर वेव्स के बाद में आपको एक इंद्रधनुष की तरह दिख रहा है ना, जो ये स्पेक्ट्रम, दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ, और दिस इज अ विजिबल लाइट। सो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ रहती है वो रहती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो वायलेट जो कलर है, उस वायलेट कलर की वेवलेंथ रहती है 400 नैनोमीटर, और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ रहती है 700 किलोमीटर। उसके बाद में आता है अल्ट्रा वायलेट रेज, सी, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद में एक्स रेज, एंड लास्टली गामा रेज, और गैमा रेज वी कॉल इट एज। सो ये रेज रहती है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ओके, रेडियो वेव से लेके अभी ये 10⁻8, यानी कि ये बहुत बड़ी वेव हो गई। 10⁻8 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इट विल बी ग्रेटर देन 1 लाख मीटर्स। ओके, एक वेव की वेवलेंथ जो है वो 1 लाख मीटर से भी ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप आईआर वेव्स, यूवी वेव्स और एक्सरेज और गैमा रेज की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर टिल दिस, आई विल बी बैक। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रेडियो वेव्स जो है उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इंफ्रारेड वेव्स जो होती है उनकी वेवलेंथ रेडियो वेव्स से कम होती है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो आईआर से भी कम होती है। अभी आईआर से कम किसकी होती है, तो यूवी, अल्ट्रावाइट की। उसके बाद में एक्स रेज, एंड सबसे छोटी वेवलेंथ जिस, अगर कौन से कोई रेज की होती है तो होती है गैमा रेज की। अभी मैं रेज की बात कर रहा हूं। रे इज व्हाट? रे इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने जैसे आपको कहा था, जो हम लाइट देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो जब मैं रे की बात करता हूं दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वेव। Okay, so this is the electromagnetic spectrum that has to be given clearly in your book, but it is not given. So that's it, ठीक है। लेकिन now let's get back to the book. See, so I have shown you the electromagnetic spectrum in a proper form. Now we briefly describe different types of EM waves in order of decreasing wavelength or increasing frequency. Now see, अगर वेवलेंथ छोटी है, ओके, इफ वेवलेंथ इज स्मॉल देन फ्रीक्वेंसी इज हाई। ओके, इफ वेवलेंथ इज स्मॉल देन फ्रीक्वेंसी इज हाई। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दो चीजें, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यह एक दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये दो चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही हमें देखा जाता है कि जहां पे वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब अभी अगर आप इसको एक एनालॉजी लेके समझना चाहो तो मैं एक नई टैब खोलता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, so see, this is a new tab, and let us suppose I am drawing a wave here. Okay, so this is the duration of 1 second। यहाँ पे मेरा 1 सेकेंड होता है और यहाँ पे मेरा 2 सेकेंड्स होते हैं। ओके, सो सी, मैंने यहाँ पे एक वेव ड्रॉ कर ली, दूसरी वेव ड्रॉ कर ली, तीसरी वेव ड्रॉ कर ली, एंड दिस इज द फोर्थ वेव। ओके, सो 1 2 3 4, 4 वेव्स मैंने ड्रॉ कर ली। तो कोई मुझे बताएगा कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी?
एक सेकेंड में कितने साइकिल्स आपको पास होते हुए दिख रहे हैं? एक सेकेंड में हाउ मेनी साइकिल्स इन 1 सेकेंड? 2 साइकिल्स आर देयर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 2 हर्ट्ज रहेगी, 2 Hz, 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। यहाँ पे भी दो ही है, देखिए 1 से लेके 2 के बीच में भी मैंने 2 ही ड्रॉ किया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो एक और वेव ड्रॉ करता हूं, अभी मेरा यहाँ पे 1 सेकेंड है, ओके। सो लेट अस सपोज ये जो वेव है यहाँ पे मेरी एक ही ड्रॉ हो रही है, ये इवन वेव नहीं है, मतलब जैसे मैं ड्रॉ करना चाहता था वैसे तो वेव नहीं ड्रॉ हुई है, लेकिन आप समझ लीजिए कि यह एक प्रॉपर साइकिल ऑफ वेव है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी ऑब्वियसली 1 हर्ट्ज। देखिए, तो अगर आप लेंथ मेजर करोगे, ओके, लेंथ ऑफ दिस वेव एंड लेंथ ऑफ दिस वेव, तो कौन सी वेव की लेंथ ज्यादा रहेगी? ऑब्वियसली जो सेकंड वेव है उसकी लेंथ ज्यादा रहेगी। ये जो लेंथ है ना, ये ज्यादा रहेगी, और ये लेंथ जो है वो कम रहेगी। सो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लेंथ कैसी है? कम है। लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है तो लेंथ क्या हुई? ज्यादा हुई। ठीक है, तो इस तरह से यस 50 साइकिल्स पर सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेव। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो जो वेव रहती है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो वो वेव अलग रहती है। ठीक है, तो वो भी एक वेव ही है, लेकिन दैट इज जस्ट प्योर इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ वेव, उसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट नहीं रहता है। समझ रहे हो सूरज? सी द डिफरेंस। यू हैव सेड करेक्टली। अब हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज 50 हर्ट्ज रहती है, मतलब कि 50 से लेके 60 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसमें मैग्नेटिज्म का कोई भी कंपोनेंट नहीं रहता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ईएम वेव्स की, तो ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेंट रहेगा। Okay, so that is the difference. You should be able to differentiate between the wave that comes in our home and the wave that is currently coming to our eyes. Okay, हमारे आईज पे जो वेव्स गिर रही है वो ईएम वेव्स है। आपके मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है दैट इज ईएम वेव, बट आपके मोबाइल में जो चार्जिंग हो रही है या फिर आपके कंप्यूटर को जो प्लग कनेक्टेड है उसमें जो वेव है दैट इज नॉट द ईएम वेव। ओके, so that is the difference. Now let's go further. Radio waves are produced by accelerated motion of charges in a conducting wire. The frequency of waves produced by the circuit depends on the magnitudes of the inductance and capacitance. This will be discussed in 12th standard. Thus, by choosing suitable values of inductance and capacitance, radio waves of desired frequency can be produced. So हम पहले स्पेक्ट्रम में जो पहली चीज थी यहाँ पे देखिए, सो दैट वाज रेडियो वेव्स। अभी रेडियो वेव्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। सो रेडियो, सबसे पहले तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म कैसे होती है। मैंने आपको बताया था कि एक चार्ज रहता है दैट इज एक्सिलरेटेड, तो जो जब ये वो इस तरह से घूम, वो एक्सिलरेटेड रहेगा तो वो एक वेव फॉर्म करेगा, और इस वेव की वजह से भी एक और वेव फॉर्म होगी दैट विल बी मैग्नेटिक वेव, एंड द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट टुगेदर फॉर्म्स द ईएम वेव। ओके, तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो रेडियो वेव्स को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है? रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक सर्किट की, जिसे कि नॉर्मली ट्यून सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यून सर्किट, TUNED, ट्यून सर्किट। सो उस ट्यून सर्किट में क्या रहता है? उस ट्यून सर्किट में रहता है कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। आई होप यू हैव सीन दीज टू कंपोनेंट्स। ओके, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस आप लोगों ने देखा है या फिर नहीं? हैव यू सीन कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस? यस, गुड। तो ट्यून सर्किट में ये दो चीजें रहती है, इनकी मदद से वो ट्यून सर्किट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है, रेडियो वेव्स। ओके, सो आपको अगर रेडियो वेव्स की बात, मतलब ट्यूनिंग के बारे में अगर आपको जानना है, ओके, सो हमारे घर में जो पुराने जमाने में रेडियोज रहा करते थे, अभी तो आपको रेडियोज का कुछ, आई डोंट थिंक आपने पुराना रेडियो देखा भी है या फिर कभी ऑपरेट किया है। आई डाउट। ओके, आई डोंट थिंक आपने कभी पुराना रेडियो ऑपरेट किया है आपने कभी ऑपरेट? Okay, Suraj have operated the old radio.
तो उसमें चैनल करने चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक नॉब रहता था। ओके, आर्या ने नहीं किया है, समीर ने नहीं किया, दैट्स फाइन। तो उस रेडियो में अगर हमें चैनल चेंज करना है, लाइक सपोज वी आर लिसनिंग टू अ चैनल एंड वी वांट टू चेंज द चैनल, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, हमें एक नॉब दिया रहता था, उस नॉब को घुमा के हम क्या कर सकते थे, वहां पे एक कांटा रहता था। देखिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा उस कंसेप्ट को, just give me a second. Okay, so see, let us suppose this is your radio, this is your radio। तो इस रेडियो में आपके यहाँ पे तो एक स्पीकर रहता था। ओके, सो ये जो चीज है यहाँ पे इस साइड में, ये कंप्लीटली स्पीकर है। ओके, दिस इज स्पीकर। अभी मैं इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी समझ लो, ठीक है। नाउ इट विल बी विजिबल। सो सी, दिस इज, लेट अस सपोज योर स्पीकर। ओके, दिस एरिया इज स्पीकर एंड यहाँ पे एक स्क्रीन रहती थी। ओके, सी यहाँ पे एक स्क्रीन रहती थी ऐसी ऊपर, इन दिस एरिया द स्क्रीन वॉज देयर, और इस स्क्रीन पे आपको इस तरह से कुछ नंबरिंग दिखाई देती थी। ओके, तो कुछ नंबरिंग थी यहाँ पे, और एक पॉइंटर था इसमें। सी नाउ पॉइंटर विल बी लाइक दिस। सो एक पॉइंटर था, और यहाँ पे दो कीज रहती थी, एक बड़ी की रहती थी और एक छोटी की रहती थी। तो इस तरह से, और यहाँ पे कुछ एंटेना भी वगैरह ऐसे रहता था। ओके, तो समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो बड़ा नॉब है, इस नॉब को घुमा के हम इस पॉइंटर को या तो इस तरफ या तो इस तरफ हम ले जा सकते थे। ओके, तो इससे क्या होता था कि हम चैनल चेंज कर रहे हैं ऐसे बोलते थे, लेकिन हम लोग वहां पे एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, इस नॉब को घुमा के हम एग्जैक्टली क्या कर रहे थे। सो वी वेर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ओके, जो हमारा रिसीवर है, उस रिसीवर की हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। और उसे ट्यून सर्किट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट ट्यून्स। समझ रहे हो, ट्यून्स मतलब कि अगर आपके टावर से आपको फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेट अस सपोज 88 मेगाहर्ट्ज, आपके टावर से आपको फ्रीक्वेंसी आ रही है 88 मेगाहर्ट्ज, तो आपको इस नॉब की मदद से आपके रेडियो को 88 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून करना पड़ेगा। जब आप 88 मेगाहर्ट्ज पे जाएंगे, ओके, देयर आर सेवरल चैनल्स। ओके, तो एक 88 मेगाहर्ट्ज पे जब आप आपके रेडियो को सेट करेंगे, तभी आपको उस चैनल का जो कार्यक्रम चल रहा है वो सुनाई देगा। समझ रहे, इसे कहते हैं ट्यूनिंग। तो इस बटन की मदद से, इस नॉब की मदद से हम ट्यून किया करते थे। ओके, सो इसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा था कि उस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की मदद से हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं रेडियो वेव्स की। तो रेडियो को नाम ही रेडियो है, तो ऑब्वियसली उसमें रेडियो वेव्स यूज होती ही है, लेकिन सिर्फ रेडियो में ही रेडियो वेव्स यूज होती है ऐसा नहीं है। ओके, सो there are several other applications of radio waves that we are going to see. So what are the properties of radio waves? They have very long wavelengths ranging from a few centimeters to few hundred of kilometers. Okay, so we have seen the spectrum। उसमें हमने देखा कि सबसे छोटी जो रेडियो वेव हम जिसे कह सकते थे, दैट वाज 10 रेज टू द पावर -2 आई थिंक। ओके, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर्स और 0.01 मीटर्स, यानी कि कुछ सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर का वेवलेंथ इनका रहता था। लेकिन 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स इज वेरी लार्ज वेवलेंथ, इजंट इट? बहुत लार्ज वेवलेंथ ये होती है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में हमें यही बताया गया है कि उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत लॉन्ग होती है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो वेव। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, द रेंज ऑफ AM band, that is amplitude modulated band, is 530 kilohertz to 1710 kilohertz। नाउ अब ये AM बैंड क्या है, FM बैंड क्या है, PM बैंड क्या है, ये सब चीजें आपको 12th स्टैंडर्ड में सीखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपको तीन चीजें नोट करनी है। AM बैंड की फ्रीक्वेंसी रहती है 530 किलोहर्ट्ज से लेके 1710 किलोहर्ट्ज। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स used for TV transmission range from 54 megahertz to 890 megahertz। टीवी ट्रांसमिशन के लिए कितना फ्रीक्वेंसी क्या है, 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज है। ये दो चीजें आपने लिख ली। नाउ फॉर FM रेडियो बैंड, FM रेडियो बैंड के लिए 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी एलोकेट की रहती है। तो ये तीन चीजें आप लिख लीजिए।
आपने रनिंग नोट्स लेने हैं, ओके, तब जाके आपको फिजिक्स जब आप बाद में पढ़ेंगे या फिर रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी होगी। जो मैं चीजें बोलता हूँ वो लिख के अगर आपको लेने की आदत है, दैट इज वेरी गुड हैबिट, ठीक है। सो ये तीन चीजें लिख लीजिए। अभी सूरज ने बताया था कि 104 पॉइंट समथिंग जो रहता है वो रेडियो का चैनल होता है क्या। तो 104 पॉइंट आपने सूरज लिखा है हर्ट्स, हर्ट्स नहीं मेगा हर्ट्स, ओके। तो सी यहाँ पे मेगा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, किलो हर्ट्स, ये जब चीज ये सब जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ओके। नो व्हाट इज द नोटेशन मींस, सी नोटेशन यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज, 1 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज यानी कि 1000 हर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज यानी कि 10⁻⁶ हर्ट्ज या फिर 1 लाख हर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ हर्ट्ज, 10⁻⁹ हर्ट्ज, okay. 1 micrometer, see 1 micrometer that means 10⁻⁻⁻6 meters, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, सी ए के सर पे जो डॉट दिया है इसका मतलब होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, सो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 meters और 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹मीटर्स, ओके। सो ये सब चीजें आपको याद में रखनी पड़ेगी, याद रखनी है यानी कि इसको रट्टा मार लेना है ऐसा नहीं है, ओके। सो ये चीजें जो है ये यूनिवर्सल है, तो इसको आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। अभी मैं हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, 1 किलो हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स, 1 गीगा हर्ट्स। जब हम डेटा की बात करेंगे, 1 किलो बाइट्स, 1 मेगाबाइट्स, 1 गीगाबाइट्स, ये चीजें तो आपने सुनी है ना कि 1 MB, 10 MB, आपके पास जो फाइल है वो कितने MB की है, तो 10 MB की है। तो 10 MB मीन्स क्या, 10 मेगाबाइट्स। तो 10 मेगाबाइट्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अभी जो हमारे मोबाइल का रैम होता है या फिर इंटरनल स्टोरेज होता है, 32 GB है, 4 GB है, 6 GB है, ये सब चीजें हम नॉर्मली बोल जाते हैं, बराबर, लेकिन इनका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए कि 1 GB यानी क्या, कितना, 1 गीगाबाइट्स यानी कितना, 10⁻⁹ बाइट्स। अभी बाइट क्या होता है, बाइट इज इक्वल्स टू 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। अभी बिट क्या होता है, बिट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। सो ये सब चीजें हमें डिटेल में पता होनी चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट। सो अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे तो आप बहुत इंजॉय करोगे साइंस को, लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से स्टडी करते हो तो यू विल फाइंड साइंस वेरी डिफिकल्ट, ओके। सो सारी चीजें रिलेटेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज रिलेटेड, सो ट्राई टू कनेक्ट एंड रिलेट द थिंग्स इन मैथमेटिक्स एज वेल एज साइंस, ओके। सो ये चीजें आप अच्छे से समझ लो, इन चीजों को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लासरूम पे मुझे आप डाउट लिख सकते हो। नाउ रेडियो वेव्स यूज कहाँ पे की जाती है, रेडियो वेव्स आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पस, दैट वी ऑल नो। दे आर यूज फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल्स। हमारे घर के ऊपर जो एंटेना होता है या फिर जिसे हम छतरी कहते हैं, डीटीएच की, so that is nothing but the receiving antenna that receives the TV signals from the satellite and convert those signals into the form of electrical signal, and that electrical signal comes to our set-top box. From the set-top box it goes to TV, and from TV it is decoded and we can see the actual program, okay. So this is how the communication happens. Cellular phones use radio waves to transmit voice communication in the ultra high frequency band. तो यहाँ ये जो रेडियो वेव्स का बैंड है, ओके, वन बैंड हमने सीखा, तो उसमें भी अलग अलग बैंड होते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड। सो इन सब चीजों की डिटेलिंग हमें यहाँ पे नहीं दी है, सो विल नॉट गेट इनटू इट, ओके। सो ये 12th स्टैंडर्ड में मोस्टली आपको इन सब बैंड्स के बारे में भी बताया जाएगा, okay. So this is the chart that tells lots of things about EM waves. Now first one is gamma rays, okay. So how many of you have seen the movie Hulk, Hollywood movie Hulk? How many of you seen? कितने लोगों ने हल्क मूवी देखी है, अवेंजर्स मूवी देखी है? समीर हैज सीन, okay, you have not seen,
ओके, यू हैव हर्ड अबाउट इट, गामा रेज। ठीक है। सो हल्क मूवी का जो कैरेक्टर है, जो हीरो जिसे हम कहते हैं हल्क, सो उसमें उस पे गामा रेज का रेडिएशन हुआ था। ओके, उस पे गामा रेज का रेडिएशन हुआ था, लेकिन फिर भी वो बच गया था और उसे कुछ सुपर पावर्स मिली थी। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि गामा रेज हमें आप खुद पे बम्बार्ड कर लेनी है। गामा रेज आर द मोस्ट हार्मफुल रेज। ओके, अगर गामा रेज कभी हम पे गिर जाती है, सो वी कैन नॉट सर्वाइव, हम बच ही नहीं सकते, गामा रेज से हम बच नहीं सकते। दे आर वेरी वेरी डेंजरस वेव। ओके, सो गामा रेज नॉर्मली हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी गामा रेज। सो इनकी जो वेवलेंथ है देखिए, 6 × 10⁻⁻13 टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर्स में है। मतलब कि ये बहुत छोटी है, ये जो वेवलेंथ है। वेर इट इज यूज, ओके, वी आर गोइंग टू सी इट, गामा रेज कहाँ पे उसका यूज होने वाला है। ठीक है। सो सी, वेवलेंथ क्या है गामा रेज की, बहुत छोटी है। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, मैंने बताया आपको। अगर वेवलेंथ जितनी छोटी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। अब ये जनरेट कहां से होती है? दे आर जनरेटेड इन ट्रांजिशन ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, सो इनकी जनरेशन किस तरह से होता है? ट्रांजिशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अभी गामा रेस का यूज कहां पे होता है? गामा रेस का यूज ऐसी जगह पे होता है जो कि अनमैन टाइप होते हैं, मतलब कि वहां पे इंसान नहीं जा सकते। ओके, अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में कोई चीज है जिसे कि डिस्ट्रॉय करना है, ओके, या फिर कुछ कटिंग वगैरह करना है, लेकिन वहां पे इंसान काम नहीं कर सकता, तो गामा रेज आर यूज्ड। ओके, सो you can find the application of gamma rays over the Google. Now below gamma rays, x-rays are there. Okay, तो 8वीं क्लास में या फिर 9वीं क्लास में भी आप लोगों ने सुना होगा एक्सरेज किस लिए यूज होते हैं, कि हमारे बोन में कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह है ना, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए वो एक्सरेज यूज होते हैं, बराबर। सो एक्सरेज का यूज जो है वो मेडिकल पर्पजेस के लिए होता है। लेकिन ये भी वार्निंग आप लोगों ने सीखी होगी कि एक्सरेज का ज्यादा यूज अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम फ्रीक्वेंटली एक्सरे करवा रहे हैं हमारे बॉडी का, सो दैट इज हजार्डस, दैट इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी। ओके, सो वी हैव टू अवॉइड बीइंग इन कांटेक्ट विथ एक्सरेज एज मच एज वी कैन, मतलब जितना हम हो सकता है हम एक्सरेज के कांटेक्ट में ना आए। तभी तो देखिए, जिस व्यक्ति का एक्सरे निकाला जाता है, उस व्यक्ति को अलग चैम्बर में लिया जाता है, मतलब कि उसे अलग हॉल में या फिर अलग रूम में लिया जाता है और उसका एक्सरे निकाला जाता है। किसी को भी उसके साथ नहीं रखा जाता, या फिर डॉक्टर भी उसके साथ में नहीं रहते। ओके, सो दैट्स व्हाई एक्सरेज आर हार्मफुल रेज, वी कैन से दैट। सो इनकी भी वेवलेंथ है, ये भी बहुत छोटी है, 1 × 10⁻⁻11 टू 3 × 10⁻⁻8। तो ये 10⁻⁻8 का मतलब क्या है कि 3 से पहले कितने जीरोज है? 7 जीरोज है। 3 से पहले 7 जीरोज है और उसके बाद में एक पॉइंट है। सी सी, दिस मीन्स 3 × 10⁻⁻8 मीन्स 0.1 2 3 4 5 6 7 and this. So this is the wavelength of these waves. इतनी छोटी वेवलेंथ होती है, मतलब 1 मीटर का कितना छोटा सा हिस्सा, ये वेवलेंथ एक्सरेज की होती है। अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी कैसे रहनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज्यादा रहनी चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी तो हाई होती है, 3 × 10⁻19 से लेके 1 × 10⁻16, विच इज वेरी हाई। नाउ हाउ दे आर जनरेटेड? बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ हाई एटॉमिक नंबर टारगेट। सो इनको जनरेट करने के लिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसी ऐसे एटॉमिक टारगेट पे बम्बार्ड किया जाता है जिसका कि एटॉमिक नंबर हाई हो। ओके, सी, कॉपर, मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट are these three are the things that can be used to generate X-rays. Energy level transitions of innermost orbital electrons, so that is another method which can be used for generating X-rays. After that, ultraviolet rays are there. इसकी भी वेवलेंथ जो है, देखिए वेवलेंथ अभी यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ थी। ओके,
वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, वेवलेंथ और बढ़ गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फिर से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम रहेगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ पे रहेगी। ओके, सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। उसके बाद में आता है अल्ट्रावायलेट वेव्स। अल्ट्रावायलेट वेव्स किस तरह से जनरेट की जाती है? रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज इन हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड द सन मर्क्यूरी वेपर लैम्प। सो इसका जनरेशन किस तरह से होता है? दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पज, ये मोस्टली आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो ये वेव्स किस तरह से जनरेट होती है। सो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस, then you can see the video of generation of these waves कि ये waves exactly generate किस तरह से होती है। उसके बाद में IR waves, IR radiations hot object से रेडिएट होती है। IR जो कोई भी hot object हो उससे इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। नाउ विजिबल लाइट तो हमें पता ही है कहाँ से जनरेट होती है। नाउ रेडियो वेव्स एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट्स। माइक्रोवेव्स special electronic device such as klystron tube. Now klystron tube is a special kind of a device which can be used for generating microwaves and it can be found in the microwave oven. Microwave oven जो है वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है कि माइक्रोवेव्स, देखिए अभी हम माइक्रोवेव्स के बारे में ही सीखने वाले हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। माइक्रोवेव अवन का नाम माइक्रोवेव अवन क्यों है? बिकॉज माइक्रोवेव अवन यूजेस माइक्रोवेव्स टू हीट द फूड इनसाइड इट। मतलब उसके अंदर का जो फूड रहता है वो वेव्स की मदद से हीट होता है। अगर आप देखोगे उस वेव को, सॉरी माइक्रोवेव को खोल के, तो उसमें कहीं पे भी आपको ना कोई गैस दिखाई देगा, ना कोई मतलब कोई फ्यूल दिखाई देगा, या फिर ना ही कोई कॉइल दिखाई देगी। कॉइल भी नहीं रहती। ओके, इट इज लाइक एम्प्टी बॉक्स, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। सो उसके अंदर या इट इज हार्मफुल। यस, सी माइक्रोवेव्स अगर हम पे गिरती है तो वो हार्मफुल है, लेकिन अगर माइक्रोवेव्स में कुक किया हुआ हम खाना खाते हैं तो इतना वो हार्मफुल नहीं रहता है। still it is harmful but it is not that much harmful। okay, so माइक्रोवेव्स में क्या रहता है? वो माइक्रोवेव का जो डब्बा रहता है उसमें एक क्लिस्ट्रॉन नाम का डिवाइस रहता है। ओके, क्लिस्ट्रॉन नाम का डिवाइस रहता है जो कि माइक्रोवेव्स जनरेट करता है। उस माइक्रोवेव्स को व्हेन द माइक्रोवेव्स स्ट्राइक ऑन आवर फूड, द फूड हीट्स, मतलब कि वो हीट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा माइक्रोवेव काम करता है। माइक्रोवेव में कुक किया हुआ फूड हार्मफुल तो होता है लेकिन इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है जिससे कि हम उसे यूज ही ना करें। ओके, उसका जो सी नेचुरल थिंग्स आर एट लास्ट नेचुरल। ओके, सो जो हम मतलब जो खाना हम गैस पे पकाएंगे, ओके, सो दैट इज लाइक नॉट एनीथिंग एल्स, मतलब उसका किसी से भी मुकाबला नहीं है। सो इट इज हार्मफुल बट नॉट दैट मच हार्मफुल। ओके, ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या सीख रहे हैं? These waves were discovered by H. Hertz in 1888. Microwaves are produced by oscillator electric circuits containing a capacitor and an inductor. So ये जो waves है ये कैपेसिटर और इंडक्टर की मदद से ही फॉर्म होती है। एंड ये जो क्लिस्ट्रॉन नाम का डिवाइस रहता है उसके अंदर भी इसी सर्किट, मतलब इन्हीं दो कंपोनेंट्स को लेके एक सर्किट बना हुआ रहता है। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। नो प्रॉपर्टीज, they heat certain substances on which they are incident। तो जैसे कि मैंने बताया, जो हम खाना यहाँ पे रखते हैं माइक्रोवेव के अंदर, बाद में हम उसका दरवाजा बंद कर देते हैं एंड दैट फूड हीट्स। तो कभी भी अगर माइक्रोवेव खराब हो जाए इन केस घर की, तो कभी भी उसे घर पर रिपेयर नहीं करना चाहिए। ओके, उसको घर पर रिपेयर करने का डेंजर क्या हो सकता है कि वो जो क्लिस्ट्रॉन ट्यूब है वो क्लिस्ट्रॉन ट्यूब ओपन ना हो जाए और उससे माइक्रोवेव्स मतलब हम पे ना गिर जाए। ओके, सो दैट इज द डेंजर दैट वी शुड बी केयरफुल ऑफ। सो इट मे कॉज बर्न्स, सो वी नेवर हैव टू ओपन माइक्रोवेव्स इफ इट इज डैमेज्ड इन होम। अगर वो माइक्रोवेव खराब हो जाती है तो उसे हमें साइड में निकाल के रखना है या फिर मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए। ओके, रिपेयर पर्सन के पास ले जाना चाहिए। उसे हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करके भी नहीं रखेंगे।
नो दे कैन बी डिटेक्टेड बाय क्रिस्टल डिटेक्टर्स। उसके यूजेस क्या है देखो, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल्स, यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव ovens are used for cooking, used in a radar system for location of distance object like ship, aeroplanes, etc. They are used in study of atomic and molecular structure. So ये waves harmful होते हैं, ये तो हमें पता ही है। आपने ये मूवी देखा होगा रोबो 2.0, बराबर? तो उस रोबो 2.0 में क्या दिखाया है कि वो एक पक्षी राजन रहता है जिससे कि पक्षियों से बहुत प्रेम रहता है। लेकिन ये जो अभी हमारा नेटवर्क के जो टावर्स है या फिर इनके जो सिग्नल्स है, दो सिग्नल्स आर कॉजिंग डैमेज टू दोज स्पैरोज। ओके, जो पंछी है या फिर जो पक्षी है उनके लिए ये जो रेज रहते हैं ये हार्मफुल है, दे आर हार्मफुल फॉर एवरीवन। ओके, ये जो मतलब हम जो ईएम वेव्स का जितना हमें फायदा है उतना हमें नुकसान भी है। ओके, सो दीज आर हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल। सो उसमें अगर आपने देखा होगा तो वो जो पंछी रहते हैं वो पंछी इन वेव्स की वजह से मर रहे हैं। एंड दैट विलन एक्चुअली दैट इज हीरो अक्षय कुमार। सो दैट इज ही इज अगेंस्ट द सेल फोन यूजर्स, मतलब कि वो चाहता है कि कोई भी सेल फोन को यूज ना करे। ठीक है, सो इस थीम पे बेस्ड वो मूवी है। सो लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट, द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन इंटरनेट एंड वी कैन नॉट डू मच विद इट। नो, ग्रेजुअली मैन विल नॉट बी अ रोबोट। ठीक है, मतलब हम रोबोट नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सी, हमारा जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन भी एक तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल पे ही वर्क करता है। इफ यू नो, जब आपको कोई चिमटा काटता है ना, तो आपको झट से पता चल जाता है कि आपको किसी ने मतलब कोई चिमटा काटा है या फिर किसी चींटी ने काटा है। वो आपको जल्दी से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है बिकॉज नर्वस सिस्टम इज ऑल ओवर योर बॉडी। तो वो जो नर्वस सिस्टम है दैट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दैट गोज टू द ब्रेन एंड देन ब्रेन नोज दैट something has happened with my hand or leg or whatever it is. Okay, so this is how we feel the things with the help of our skin. So अगर हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे वर्क करता है तो ये जो ईएम वेव्स हैं दे आर डिस्टर्बिंग दो सिग्नल्स, मतलब कि इन इलेक्ट्रिकल ईएम वेव्स की वजह से हमारे it is natural signal, yes it is natural signal, it is not harmful, but the आर्टिफिशियल सिग्नल्स, ओके, जो हम सिग्नल जो कि हमने ही बनाए वो सिग्नल भी हमारे माइंड को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई यू आर नाउ, मतलब ये जो केसेस बढ़ रही है ना, डिप्रेशन या फिर लाइक मतलब कि जो लोग पागल होते हैं, तो ये मतलब इस प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। नॉट, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ द मोबाइल्स और द वेव्स। ओके, बट इसी तरह का डिस्टरबेंस उनके दिमाग में हो जाता है। सो उसकी वजह से वो अच्छे, उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ओके, सो द डिप्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, लाइक दीज आर व्हाट वी कैन से अ स्मॉल रीजंस बिहाइंड इट एज वेल। पुराने जमाने में अगर आप देखोगे तो इतना इन सब चीजों का रेट नहीं था। ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि वो बिल्कुल भी नहीं था, डिप्रेशन वगैरह ये चीजें मतलब पहले से ही है। लेकिन अभी जो है फिलहाल वो उनका जो व्हाट वी कैन से उनकी जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंसेस। ओके, सो व्हाट वी कैन डू सी, अगर हमें मतलब इन सब चीजों से दूर रहना है तो व्हाट वी कैन टेक प्रिकॉशंस, कि रात को सोते वक्त हम हमारा मोबाइल जो है वो सर के पास ना रखें। नॉट बिकॉज कि इट विल ब्लास्ट, ये ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपका मोबाइल कंटिन्यूअसली सिग्नल अपनी तरफ ले रहा है दैट इज डिस्टर्बिंग अस। ओके, सो मोबाइल सर के पास नहीं रखना है। आप चार्जिंग को मोबाइल रख सकते हैं, मैं वो नहीं कहूंगा। मोस्टली आप मोबाइल का वो फीचर यूज कीजिए। मोबाइल में एक फीचर रहता है ऑटोमेटिक पावर ऑफ एंड ऑटोमेटिक पावर ऑन। आपको क्या करना है, पावर ऑफ का सेटिंग कर देना है, पावर ऑन का सेटिंग कर देना है। मतलब रात के टाइम में आप टाइम सेट कर सकते हैं लाइक 11, 12, 11:30, जितना मतलब आप कंफर्टेबल है उस हिसाब से। उस टाइम पे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और सुबह 5, 4, 6 जब कभी भी आप उठते हो वो पावर ऑन का टाइम सेट करना है। सो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल
हर रोज रात को 11 से लेके सुबह 5 बजे तक बंद रहता है। इससे क्या होता है कि मोबाइल को भी एरोप्लेन मोड इज ऑल्सो ओके, यस एरोप्लेन मोड इज ऑल्सो ओके, मतलब एरोप्लेन मोड पे जब हम डालते हैं तो कोई भी सिग्नल हमारा मोबाइल रिसीव नहीं करता है, ओके, बट स्टिल द IR रेडिएशन इज देयर फ्रॉम मोबाइल स्टिल, ओके। आप एरोप्लेन मोड पे भी डालोगे तो भी IR रेडिएशन थोड़ा सा होता ही है मोबाइल से जब मोबाइल ऑन रहता है। इट इज बेटर कि मोबाइल दूर होना चाहिए अपने हमारे सर से। किसी किसी को क्या होता है, आदत होती है कि मोबाइल वो तकिए के नीचे रख देते हैं, या फिर रात को सोते वक्त मोबाइल का यूज करना और मोबाइल सर के पास ही रख के सो जाना। सो दैट इज वेरी बैड हैबिट, ओके, ये नहीं होना चाहिए। मोबाइल अगर पास है भी, दैट शुड बी इन स्विच ऑफ मोड, ठीक है। सो इस तरह से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इसका कुछ मतलब इंस्टेंट आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली मोबाइल साथ में रखते हो, ये वेव्स के, these are harmful in future for you, okay। So yeah, it is about 7:45 and I have another class, so in that case we have to stop here only, okay। So देखिए next is what, okay, we'll just complete this portion। Used in radar systems for the location of distant object like ships, aeroplanes, they are used in the study of atomic and molecular structure। तो अभी ये जो रडार सिस्टम क्या होता है, रडार सिस्टम में इस वेव्स का यूज किस तरह से होता है। तो जैसे कि हमने सीखा कि EM वेव्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है, बराबर। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एरोप्लेन आ रहा है, ओके, किसी एनिमी का एरोप्लेन आ रहा है इनसाइड आवर बॉर्डर, तो हमारा जो रडार है वो रडार कंटिन्यूअसली EM वेव्स रिफ्लेक्ट कर, व्हाट वी कैन से इमिट करता रहता है। हमारे रडार से कंटिन्यूअसली EM वेव्स निकलते रहते हैं। जैसे ही कोई एरोप्लेन आता है, उस एरोप्लेन पे वो वेव्स मतलब टकरा के रिटर्न उस रडार को मिल जाते हैं। जैसे ही कोई सिग्नल रडार को मिल गया वापस, मतलब कि रिफ्लेक्टेड सिग्नल जब मिलेगा, तो रडार समझ जाता है कि कहीं ना कहीं पे कोई तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है, ओके। सो दिस इज हाउ the radar system works। See, what I want to say, tell you is, see, this is your radar for example, okay, this is your radar and it is continuously sending the waves, मतलब कि इसका काम क्या है कि continuously waves send करना। अगर waves वापस नहीं आ रही है, that means the sky is clear, but in case a aeroplane comes here, okay, so see, I'm not drawing the aeroplane properly, लेकिन अगर कोई एरोप्लेन आ जाता है तो ये एरोप्लेन क्या करेगा, इस वेव को रिफ्लेक्ट करेगा एंड द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी गैदर्ड बाय द रडार एंड द रडार विल नो दैट समथिंग हैज एंटर्ड इन द सर्वेलेंस एरिया, मतलब जहां पे उसे नजर रखने के लिए बोला गया है उस एरिया में कोई ना कोई तो चीज आई है। तो इसके बारे में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो या ठीक है, तो we'll see you in the next lecture। And okay, it goes only, it goes forward only till its frequency reach, yes, या जिस जहां तक उसका रेंज है वहां तक वो फॉरवर्ड ही जाएगा। अगर कोई बीच में नहीं आता है तो वो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, ओके। सो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे कुछ वेव चले गए तो कुछ नुकसान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वेव गए तो गए, वो फिर से जनरेट हो सकते हैं, दैट इज नॉट द इश्यू, ठीक है। सो उसको कंटिन्यूअसली वेव्स इमिट करता रहना पड़ता है एंड जैसे ही उसे कोई रिफ्लेक्टेड वेव मिल जाती है, सो इट नोज दैट समथिंग हैज एंटर्ड, ओके। सो चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। समीर, आर्या, बाय बाय। आर्या, बाय बाय, लीव द क्लास।